Everybody, good evening. Good evening, sir. Very good evening. Okay. देख रहे होंगे ना कि मैं नहीं आया अभी तक। ओके सो आज भी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड द टॉपिक इज रिलेटेड टू योर GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है? एंड इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस विल बी फोकसिंग टुडे upon a body, I mean some to which you call statutory or extra constitutional, or means these are bodies, constitutional, extra constitutional. So today we'll be focusing upon the different kinds of bodies, ठीक है? ठीक है? And context उसका पहले देखते हैं कि क्या करंट में है, why I mean we are going to discuss this topic today. CBI कहीं डिस्कस नहीं किया कभी भी हमने? ईडी वगैरह सब सुन के बड़ा अच्छा लगता है। चलो, सो सीबीआई एंड ईडी के बारे में बात करेंगे। इस जस्ट वीक में 2 दिन पहले ये ईडी के I mean 2 रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट हैं, दोनों से रिलेटेड, ठीक है? सीबीआई विद रिस्पेक्ट टू सीबीआई वी हैव 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट in just I mean this week, the last 1 week. So what happened recently, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि भाई काम इतने धीरे क्यों चल रहे हैं? सो व्हाट सीबीआई सेड इन कोर्ट दैट द स्टेट हैज डिनाइड द जनरल कंसेंट टू द सीबीआई, ठीक है? सीबीआई ने ये कहा कि अराउंड 150 के अराउंड ऐसे केसेस हैं जिनकी अभी परमिशन हमें नहीं मिली है, ठीक है? CBI wants to conduct or investigate those cases, but around 150 cases are pending in 8 states. ठीक है? So this is what said in the court, Supreme Court by the CBI. ठीक है? So the first context was this. The second context is President has recently formulated 2 ordinances. First respect to CBI and the second respect to Enforcement Directorate. काम क्या है दोनों का? इसलिए किया गया ऑर्डिनेंस, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू एक्सटेंड देयर टेन्योर, ठीक है? अभी इस टाइम पे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के जो चीफ्स होते हैं जनरली उनकी जो टेन्योर है दैट इज ऑफ 2 years, ठीक है? बट थ्रू दिस आई मीन ऑर्डिनेंसेस द गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग देयर टेन्योर अप टू 5 years, मींस 2 + 3 and that 3 like annually, ठीक है? एक्सटेंशन, एनुअल एक्सटेंशन 3 times for 3 years. So maximum of 3 extension, ठीक है, per year, and 2 years तो already है ही है, तो so 2 + 3 5 years. So these are the 2 contexts related to our discussion today, that why we are taking up these topics, ठीक है? So here comes your first question before moving ahead. Yes. So with respect to CBI, consider the following statements. It is a statutory body established on the recommendation of K. Santhanam Committee. This is how you generally find questions in your pre, ठीक है? Yes, try. आशीष, ठीक है, आपने बोल दिया, मैंने लॉक कर दिया। हाँ जी, कहाँ बैठे हो? एक साइड बैठे हो ताकि मेरे को भी थोड़ा इजी रहे। मैं किधर करूंगा? उधर ही इधर? एक साइड बैठा करो। Yes, Monica. What should be the answer? क्या होना चाहिए आंसर? ए, आशीष, ओके, विवेक? Yes, Monica. Be little loud. Option A. Option A. Okay. Riddhi, Soumyashri? Sir, both are correct. Both are correct. Okay. Sir, Soumyashri? Kalindi? Sir, can you just shift a bit? I cannot see the option. What? Sir, can you shift towards your... Oh, sure. Sir, both A and B.
Okay. Somashri, most of the time you give the correct answer and I am expecting the correct again. So I hope you got, you know, So the I think idea only, that all are incorrect. Eh? so I think only A. Only A. No, sir, Okay. wait. Okay. So I think only, yes, only A. Only A. Okay. कोई रह गया? जो रह गया विजय, जो रह गया फटाफट बता दो. विजय एंड बस कनिका, फटाफट बोलो आता है तो. नो क्या मुकेश चुप कर जाओ, बड़ा क्लास से बाहर जाओ. एक बारी दो बारी होता है, लगातार नहीं. माइंडेड. यस विजय. ऑप्शन 3 सर. ओके. बोथ ए एंड बी. So none of you are correct. The only correct option is B. It's not a statutory body. ठीक है, हम देखेंगे क्यों नहीं है, क्या नहीं है. ठीक है. For the time being, it's not a statutory body. We don't have any such act which, you know, which was this enacted by the parliament with respect to constitution of CBI. ठीक है. First. Second, yes, indeed it was established on the recommendation of K. Santhanam committee. This committee was, this term was between 66 to 24, and then on the basis of this committee, the resolution of MHA, that is Ministry of Home Affairs, established your CBI. ठीक है. So it's not a statutory body. जो हम आगे देखेंगे कि DSP जो एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1960 1946. So you can say that this is an act, so it should be a statutory body. But that deals with the Delhi special, I mean that deals with special Delhi special police forces. ठीक है. Or you can say Delhi police, and not exclusively with CBI. ठीक है. So that only governs the functioning of CBI to a certain extent. ठीक. But that is not exclusively meant for CBI. But CBI, I mean, have a special, you can say, this powers or functions under that particular act. ठीक है. So that's why only B is correct. ये 62 में आया था और 64 में इम्पोज हुआ था. क्या चीज है? अरे नहीं, टेन्योर थी इस कमेटी की इतनी. MHA ने रेजोल्यूशन जो लाई थी, that was in 1963. So your CBI was established in 1963. सर MHA क्या बोल रहा था? Ministry of Home Affairs. ठीक है. Clear all liners? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सर एक सेकंड पीछे करना. क्या हो गया? एक सेकंड. कुछ नहीं है, चीज तो याद रखने वाली है, याद रखो. सब नहीं लिखते, सिर्फ नाम लिख लो. पूरी स्टेटमेंट कभी नहीं लिखते होते, सिर्फ कमेटी का नाम लिख लो. स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, दैट्स इट. हो गया. चलो. सो कुछ बैकग्राउंड हम ले लेते हैं. मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यू ऑल नो, अगेंस्ट करप्शन एंड मेजर क्रिमिनल प्रूफ्स. हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जो रिसेंट सीबीआई को जो ड्रामे हुए अभी. ठीक है. इट हैज इट्स ओरिजिन इन स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है. नाउ दिस इज डिफरेंट. एक्ट अभी आगे आएगा, दिल्ली स्पेशल वाला आगे आएगा. ठीक है. दिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स. ठीक है. स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सेट अप इन 1941. ठीक है. This was a body set up during the World War II in 1941, 1945 टाइम पीरियड था World War II का. ठीक. हाँ, 31, 39, 45. ठीक है. So special, this SP was set up in 1941 by the Britishers to inquire some, bribery or corruption related matters involved with respect to your World War II. ठीक है. So this is how the evolution of this CBI took place. Then CBI was set up by resolution of Ministry of Home Affairs in 1963 after the Santhanam committee recommendations. ठीक है. Fine. हाँ, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि सुपरिटेंडेंस ऑफ CBI जो है that rests with CBC. What is CBC? सुना है नाम कभी? स्कूल कॉलेजों में एक इंटीग्रिटी प्लेज भी कराती है CBSE एवरी ईयर. ईमानदारी. नहीं, कहीं नहीं सुना.
कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी लेवल पे कहीं भी नहीं। ओके, इन करप्शन केसेस एंड विद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट जनरल जो इंटेंडेंस है, ठीक है, दैट रेस्ट विद सीबीएसई ओवर सीबीआई, ठीक है। बट द मिनिस्ट्री विच आई मीन द सीबीआई फॉल्स अंडर दैट मिनिस्ट्री इज डीओपीटी, ठीक है। इवन दिस मिनिस्ट्री इटसेल्फ रेगुलेट्स द हायर अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। इवन आप जब भी ऑफिसर्स बनोगे सो डीओपीटी ही आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सो जितेंद्र सिंह इसके फिलहाल मिनिस्टर हैं, ठीक। तो देखोगे जब भी तो मीटिंग्स होती है, इवन की जब अभी लवासना से आने के बाद फर्दर या उससे पहले भी जब रिजल्ट आता है तो सब लोग यहाँ जाते हैं इस मिनिस्ट्री के वहाँ, ठीक है। फेलिसिटेशन होती है एंड देन बिफोर अपॉइंटमेंट और एनीथिंग यू नो योर सर्विस रूल्स आर डायरेक्टली गवर्न्ड बाय दिस मिनिस्ट्री, ठीक है। सीबीआई पार्ट हुआ डीओपीटी का। हाँ, द मिनिस्ट्री जो है दैट इज सीबीआई फॉल्स अंडर डीओपीटी एंड नॉट एमएचए, रिमेंबर दिस। टिल आई मीन उससे पहले यहाँ तक होती थी, इनिशियली दिस वाज अंडर एमएचए बट लेटर ऑन इट वाज इवन की जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत का बुक देखोगे तो उसमें भी आएगा कि इनिशियली इट वाज अंडर एमएचए बट लेटर इट वाज ट्रांसफर्ड टू डीओपीटी, ठीक है। नाउ द रीजन इज यू कैन आस्क व्हाई, ठीक, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड ऑल, ठीक है, करप्शन रिलेटेड, देन इट शुड फॉल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। बट द रीजन बीइंग कि जो भी सीबीआई का ऑफिसर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम यू वुड सी दे आर आई मीन सीबीआई डजंट हैव अ सेपरेट कैडर फॉर इटसेल्फ, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना कि सीबीआई का कोई एग्जाम होता है, नहीं होता ना। बेसिकली जो ऑफिसर्स हैं वो डेपुटेशन पे आते हैं फ्रॉम डिफरेंट सर्विसेज एंड मोस्टली द आईपीएस, ठीक है। डायरेक्टर्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर आईपीएस ऑफिसर्स, ठीक है। So IS and IPS and all these central, I mean, civil services, all India services are directly regulated by DOPT. So that's the reason that CBI was kept under DOPT. Simple. क्यों दो को काम देना है, फिर इशू हो जाता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के यहाँ पे रेगुलेशन इसको दे दो आप, ठीक है। बट जो ऑफिसर जो डायरेक्टर है आपका वो आपका आता है डीओपीटी के अंडर, देन दिस इज, समझ रहे हो, काम बढ़ाने वाली बात है। Although DSP Act gives legal power to CBI, CBI is not a statutory body. ठीक है? As I said, कि there is not even a, I mean, we don't have any act or a law, ठीक है, which was specially enacted for the constitutional establishment of your CBI. ठीक है? हाँ, because police, you know, Delhi police, especially in Delhi, law and order and police directly falls under MHA. ठीक है? So that's the reason. So there are two things which validate the point that this is not a statutory body. First is this is not under MHA. Second is there is not a specific, you know, law or an act which had been enacted by the parliament, especially for the establishment or constitution of this particular agency called CBI. ठीक है? DSP जो एक्ट है that I mean regulates और governs the Delhi police, उसी अंडर के एक स्पेशल विंग बनाई गई थी दिल्ली पुलिस की जो कि है CBI. ठीक है? So CBI is nothing but a special wing of Delhi police, and that's the reason that the jurisdiction of CBI is limited to Delhi only. ठीक है? वो पॉइंट मैं अभी रिपीट भी करूंगा, आगे जब हम कंसेंट की बात करेंगे तो वहां पे क्लियर होगा. ठीक है? यहां भी देख सकते हो कि वर्ड CBI इज नॉट मेंशन्ड इन द DSP एक्ट. ठीक है? Second, executive order of MHA did not mention CBI to be constituted under this. So जो MHA order था that was related to your DSP act and not with respect to CBI. ठीक? समझ गए बात? So जो resolution थी that was meant for DSP act by MHA and that was related to Delhi Special Police Forces and not with respect to your CBI. ठीक है? डायरेक्ट नहीं था. Clear है ऑनलाइनर्स? Yes, sir. These points are very very important ones. ठीक है? चलो, जनरल इश्यूज क्या हैं? हम पहले झगड़ा क्या चल रहा है उसमें जाएं, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उस पर बात करें. उससे पहले हम एक मोटे मोटे जनरल इश्यूज देख लेते हैं सीबीआई के साथ क्या है, बिकॉज सीबीआई मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज में रहती है. ठीक है? एंड आप लोग भी सुनते हो कि सीबीआई ऐसे है.
केज पैरेट है, ये है, वो है, ठीक है, बहुत पॉलिटिक्स इसके पीछे। सो फर्स्टली लेजिस्लेटिव लूपहोल्स हैं, एज आई सेड कि वी डोंट हैव एनी स्पेशल एक्ट व्हिच गवर्न्स दिस एजेंसी, ठीक है। सबसे बड़ा मेजर जो हर्डल है वो यही है, बिकॉज सीबीआई आपकी एक एपेक्स एजेंसी है with respect to investigation, but you don't have any such clear cut act or laws which governs this, or independent एक autonomy दे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, you are treating it as a as a further wing of Delhi police, ठीक है। सो यहीं पे इशू आ गई कि सीबीआई को आप दिल्ली पुलिस की स्पेशल विंग को एज अ ट्रीट कर दो, ठीक है। हाउ कम इट बी अ ऑल इंडिया एजेंसी, ठीक है। इसकी हम बात कर चुके हैं। डिपेंडेंस ऑन स्टेट्स अप्रूवल फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। द रीजन इज दिस एक्ट, बिकॉज दिस एक्ट फिक्सेस और लिमिट्स इट्स जुरिसडिक्शन दिल्ली, ठीक है। आप लोग पढ़ते हो ना, कोई भी सामान लेते हो, कुछ भी ऑर्डर करते हो, तो हमेशा एक पॉइंट लिखी होती है, दैट इज दैट इन अ मैटर ऑफ एनी कंफ्लिक्ट और एनीथिंग, हाँ, द जुरिसडिक्शन इज लिमिटेड टू ओनली चंडीगढ़ जुरिसडिक्शन, ठीक है। सो दैट कोर्ट और दैट केस कुड बी फाइल्ड इन चंडीगढ़ ओनली, ठीक है। अगर अब दिल्ली में जाके कोई प्रोडक्ट आपने चंडीगढ़ से खरीदी और दिल्ली में केस कर रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं बनता, गेटिंग दैट। सो दैट्स व्हाई जुरिसडिक्शन कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स क्या है? These are the legislative loopholes. Then administrative does not have its own cadre first and is run by officers on deputation, ठीक है। सो इसकी अपनी कैडर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑफिसर्स भी नहीं है। डेपुटेशन मोस्टली जो आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं, दे आर ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, ठीक है। सो डायरेक्ट यहाँ पे भर्ती नहीं होती है बट सीडी लेवल पे होती है, ठीक है। बी सी डी टॉप लेवल पे नहीं होती, डायरेक्टर के पोजीशन पे कभी नहीं होती। हाँ, कैडर जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस कैडर, ना दैट इज जुरिसडिक्शन। जो आप एरिया की बात कर रहे हो दैट इज जुरिसडिक्शन, ठीक है। कैडर इज जैसे आप आईएएस कैडर होता है, अलॉटमेंट जो होती है आपकी, हाँ एक्चुअली देखो, जब सर्विस अलॉट होती है ना आफ्टर ट्रेनिंग, तो आपको कैडर दिया जाता है। कैडर क्या है? जैसे एक एगमेट कैडर है, ठीक है, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी, ठीक है। सो जब आप इस कैडर को चूज करते हो, यहाँ आपको मिल जाता है, चूज करने को पहले कहा जाता है, बट मिलेगा ये श्योरिटी नहीं है, ठीक है, नहीं मिलता, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता। यहाँ तो आप टॉप 10 में हो, 20 में हो तो चांस है, ठीक है, श्योरिटी नहीं है। टीना डाबी ने हरियाणा डिमांड किया था, शी वाज ऑल इंडिया टॉपर बट शी डिडंट गेट, नो, मिला ही नहीं। सो दीज आर द चांसेस। इससे यार डिस्करेज नहीं होना कि फिर तैयारी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ शादी ब्याह होती है तो इंटर कैडेट ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी चांसेस होते हैं आपके पास। सो टेंशन नहीं लेनी कैडेट कुडर की। वैसे भी काम करना है तो छत्तीसगढ़ में करो, है ना, कुछ ऐसी जगह करो जहाँ कुछ कर सको। चंडीगढ़ में कुछ खास नहीं कर सकते आप। हाँ, हिमाचल बेस्ट है। सो कैडर समझ गए, कैडर में आपको डिवीजन किया जाता है कि आप इस इलाके में काम करोगे, ठीक है। जो कैडर पॉलिसी आई है कि नॉर्थ को डिवाइड कर दिया, साउथ को कर दिया, ईस्ट वेस्ट कर दिया, साथ में यूटीज कर दी, है ना, जरूरी है ना, अदरवाइज सबको एक जगह ही बिठा देंगे। तो इनका सीबीआई में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। सारी जो इनकी गवर्निंग है दैट इज सेंट्रलाइज, दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम दिल्ली ओनली, हेडक्वार्टर से, ठीक है। काफी न्यूज में था, अभी लड़ाई झगड़े भी हुए थे 2 साल पहले डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के बीच में, जो इस टाइम पे स्किपी है दिल्ली पुलिस। Overlapping jurisdiction of CBC, CBI and Lokpal. Now the thing is CVC, Chief Vigilance Commission, ठीक है, ये बना था आपके 2003 में आया था। इसके आगे भी इसके लिए स्लाइड है स्पेशल। सो CBC, Central Vigilance Commission, which is headed by Chief Vigilance Commissioner along with 2 Vigilance Commissioners. So the composition is 1+2, ठीक। CBC is the all India, the premier central government agency or commission which looks after especially the cases related to your corruption charges, ठीक है, especially all India services, ठीक है, ministries, departments, ठीक, हायर लेवल पे, ठीक। CBI you all know, इसका सारा फंक्शन है, जहां भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है वहां पे ये इन्वॉल्व होती है। लोकपाल
लोकपाल एक अलग चीज है, लोकपाल हैज द पावर टू क्वेश्चन इवन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इवन टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस फ्रॉम आई मीन दिस एलिगेशंस अगर कोई लगी है चार्जेस की अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर और योर सेंट्रल मिनिस्टर्स, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स और ऑल इंडिया सर्विसेज। सो गेटिंग दैट वन पॉइंट कि ये भी ऑल इंडिया सर्विसेज पे कर सकता है, ये भी, सो ओवरलैपिंग आ गई, और ये तो कर ही सकता है, दिस इज प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ऑल थ्री हैव ओवरलैपिंग फंक्शंस एंड जुरिसडिक्शन, ठीक है। अभी लोकपाल कौन है भाई, इंडिया का फर्स्ट लोकपाल कौन बने हैं, इज द फर्स्ट पिनाकी लोकपाल। चंद्र, पिनाकी चंद्र सर, कौन? पिनाकी चंद्र ऐसे ही नाम है शायद। हाँ बिल्कुल ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष, I think he was this former justice of Supreme Court. Rates of conviction जो है जस्ट 3% है, ठीक है। सो सीबीआई इतनी केसेस रजिस्टर करती है, रोज 2-4 केसेस रजिस्टर करती है ऑल इंडिया लेवल पे कहीं ना कहीं, बट जो कन्विक्शन रेट है दैट इज ऑलमोस्ट 3%, मतलब 100 में से सिर्फ 3 केसेस ही सोल्व हो पाती हैं, अल्टीमेट पहुंच सकते हैं, पहुंच पाते हैं जो रिजल्ट आई मीन होना चाहिए वहां तक, ठीक है। फाइनली कंक्लूड करते हैं सक्सेसफुली उस केस को, ठीक है। सो यू कैन सी कि आई मीन व्हाट इज द इशू, ठीक है, दिस इज अ मेजर इशू। उल्टा होना चाहिए था, 97% होना चाहिए था ऑब्वियसली। देन यू हैव पॉलिटिकल प्रेशर, ठीक। इन 2013 द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड इट केज पैरेंट, स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस, ठीक है। दिस वाज अ वेरी मच आई मीन बहुत ही डायरेक्ट क्रिटिसिज्म था, बिकॉज दिस केज पैरेंट, यू अंडरस्टैंड ना, तोते का पिंजरा, पिंजरा का तोता, तोते का पिंजरा नहीं, पिंजरे का तोता, ठीक है। आई मीन दिस वाज यू नो क्या बोलते हैं उसको, काइंड ऑफ, ठीक है। देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश ना, जैसे हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते डायरेक्ट, बट हम कह देते, सो इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करना या कमेंट करना। सो केज पैरेंट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर वॉइस, मास्टर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बिकॉज एक टाइम अभी भी ऐसा है कि जब इसको इंक्वायरी करनी होती है तो गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती है कि मैं किसके सामने मतलब अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब जैसे स्पेशली पहले क्या था कि जॉइंट सेक्रेटरी जो है, जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर ऑफिसर्स हैं, उस केस में सीबीआई डायरेक्ट उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकती, इवन दो यू नो अगर कोई भी रेगुलेशन आई मीन दिस कोई भी करप्शन केसेस या ऐसा कुछ लगता है उनको, कुछ चार्जेस फ्रेम होते हैं तो ठीक है, गवर्नमेंट से पहले सैंक्शन लेनी पड़ती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन की जरूरत क्या है जब आपकी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फिर तो सारी यहाँ पे झोल होगी, समझ रहे हो। फिर तो जो खास होंगे उनके खिलाफ कभी परमिशन नहीं दोगे। फिर यहाँ से सिस्टम ही सारा गड़बड़ हो गया, फिर हर बंदा चाहता है कि यार गवर्नमेंट के साथ खास बना के रखे ताकि कुछ गड़बड़ भी कर दें तो कोई चक्कर नहीं, समझ रहे हो। सो आप अगर लूपहोल दोगे फिर तो एक्सप्लॉइट करेंगे, इसीलिए तो बैठे ही हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट। सो आरटीआई एक्ट के अंडर ये नहीं है ना, आप फाइल करके नहीं पूछ सकते कि भाई क्या कर रहे हो, सुशांत सिंह केस में क्या बना, आरटीआई हो गया ना, आरटीआई के अंडर ये नहीं आता अभी, सीबीआई नहीं आती अभी। उसके बाद सीबीआई स्टेट में क्या डिफरेंस है, स्टेट पुलिस जो है यू नो कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आपका स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। सो ऑब्वियसली स्टेट पुलिस विल डील एक्सक्लूसिवली विद द लॉ एंड ऑर्डर इशू। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इन सम मैटर्स दैट इज एसेंशियली अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। केसेस इन व्हिच द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट जहां भी आएगा वो सारे केसेस सीबीआई देख सकती है, ठीक है। Cases relating to the breaches of central laws and big cases of fraud, cheating, embezzlement. नहीं अभी नहीं चाहिए। हाँ मतलब देखो कुछ चीजों में चाहिए होती है, कुछ चीजों में नहीं चाहिए होती है, डिपेंडिंग ऑन की करप्शन चार्जेस अगर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के बंदे पे लगता है, अगर एक एसडीएम पे लगता है तो फिर क्या चाहिए, समझ रहे हो, फिर नहीं चाहिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर पे अगर लगता है सेक्रेटरी लेवल के, फिर परमिशन की जरूरत पड़ती है, सैंक्शन की, प्रायर सैंक्शन की, ठीक है। इवन की जब कुछ जैसे सुशांत सिंह राजपूत का था केस, ठीक है, देयर आर टू थिंग्स,
एक होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद सीबीआई इंक्वायरी कराए, दूसरा होता है कि जब तक स्टेट्स रिक्वेस्ट नहीं करती तब तक नहीं कराते। उस केस के ऊपर हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक, सो दीज आर द आई मीन थिंग्स जिस केस में कर सकती है सीबीआई इंक्वायरी। चलो, consider the following statements. State can deny consent to both CBI and NIA in matters of investigation. NIA has overriding powers over state governments. NIA की हम बात कर चुके हैं सीबीआई में। ठीक, तो किसी ना किसी का कहीं ना कहीं रेफरेंस तो आता ही है, आप कह नहीं सकते कि हमने सुना ही है ना। यस रिद्धि, Set 2. यस रिद्धि, Set 2 only B. ओनली बी, ओके Yes. ओके। क्वेश्चन पढ़ा है ध्यान से मुकेश, ध्यान से पढ़ा क्वेश्चन, पूछा गया है। कनिका, व्हाट्स द आंसर? कनिका, व्हाट्स द आंसर? No idea. नो आइडिया, ओके। और कौन रह गया? मोनिका, मोनिका, Only B, sir. ओके। कलिंदी, Sir, only A. ओनली ए, Hmm. ओके। विवेक, ओनली बी। सौम्याश्री, Sir, only B. ओनली बी, ओनली कलिंदी इज करेक्ट, रेस्ट आर रॉन्ग। पूछा था इनकरेक्ट। मैंने मुकेश को 4 बार, इसलिए मैंने कहा था कि ध्यान से पढ़ा। कहाँ बैठे हो? क्लास में बैठे हो, घर पे थोड़ी बैठे हो, थोड़ी वो सीखो, ठीक है। ऑब्वियसली so Kalindi is only correct. The thing is कि states can do deny consent to both, I mean CBI, ठीक है, but not to NIA। ये सिक्योरिटी क्लास में बताया भी था, यही तो पढ़ना होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहां पे। और वहां पे सारा रेड में नहीं ऐसे आता है, वहां पे तो ब्लैक होते हैं, छोटे छोटे दिखते भी नहीं, 2 नंबर यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसीलिए जानबूझ के इनकरेक्ट डाला था, करेक्ट भी पूछ सकता था लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि ऐसी चीजें होती है, जरूरी है। सो NIA डज हैव ओवरराइडिंग पावर्स, ठीक है, बिकॉज NIA स्पेशली आई मीन बताया था कि 2008 जो मुंबई अटैक हुआ उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। सो इट हैज ऑल इंडिया यू नो हाँ इन्वेस्ट दिस पावर टू इन्वेस्टिगेट स्पेशली द केसेस रिलेटेड टू टेररिज्म, ठीक है। सो इसका काम मेनली यही था, ठीक। देखो आंसर भी साथ में लाया हूं ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो। So difference between CBI mainly deals with internal issues of corruption, मैटर ही दोनों का अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन सोल जॉब इज इन्वेस्टिगेट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड पॉसिबल एक्ट्स ऑफ, बस NIA के साथ टेररिज्म वर्ड हमेशा याद रखना। हाँ, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है। CBI is quite a massive organization spread across the country. For some states government CBI had to take general consent, so states can deny, ठीक है। NIA made headlines when it started to crack down the ring of terrorist cells in Bengal, much smaller than CBI, lot of power that overrides। Obviously if dealing with terrorism act तो वो तो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, और हाँ, और स्टेट वाले ये थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं यार हम तो स्टेट पुलिस से करवाएंगे, फिर दूसरी पार्टी कहेगी कि भाई टेररिस्ट कोई बाहर से नहीं आया, ये खुद ही करा रहे हैं, फिर एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, समझ रहे हो। नोबडी वांट्स टू लूज, ठीक है मुकेश। तो ध्यान से पढ़ना है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ध्यान से पढ़ना।
सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले तो केस पैरेट कहा, उसके बाद क्या कहा, सीबीआई ऑटोनॉमी के ऊपर एक बहुत ही फेमस केस हुआ, जब भी आपने आंसर लिखना है तो इस जजमेंट को जरूर कोट करना है, ठीक है। एंड दैट इज, क्या बात है, यहाँ पे सब दिख रहा है, ईडी, ठीक। तो विनीत नारायण का एक केस हुआ था, ठीक है, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको केसेस कोट करने होते हैं स्पेशली इन पेपर 2, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है गवर्नेंस या पॉलिटिक्स रिलेटेड, तो केसेस अगर उस फील्ड से, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, स्पेशली द इंपॉर्टेंट वंस, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू कोट दोस केसेस, मेंशन दोस केसेस इन योर आंसर, ठीक है। दिस इज वन ऑफ देम टू बी मेंशन्ड। सो सीबीआई डायरेक्टर, उससे पहले क्या था कि कुछ नहीं था, सरकार जब तक चाहती रखती, जब तक चाहती हटा देती, 6 महीने के बाद ही खत्म, ठीक है। बट सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर कहा कि मिनिमम 2 साल की टेन्योर तो होगी ही होगी, ठीक है। तो उसके बाद 2 साल की टेन्योर अब होती है, ठीक, रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ हिज सुपरएनुएशन। सुपरएनुएशन क्या होता है, दैट इज रिटायरमेंट। आई मीन किसी बंदे को अगर आपने सपोज, अब उसकी सर्विस की 1 साल रहती है, ठीक है, रिटायरमेंट की एज, ठीक है। सपोज 60 पे रिटायरमेंट है, वो बंदा भी 59 का है, ठीक है। गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम और हर एज अ डायरेक्टर सीबीआई, देन इन दैट केस द फर्स्ट ऑप्शन इज 1 साल बाद रिटायरमेंट है, बट मिनिमम 2 साल की टेन्योर तो होगी होगी, ठीक है। तो दैट पर्सन वुड गेट द बेनिफिट ऑफ 1 मोर ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, एक्सटेंशन, ठीक। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग, सुपरिंटेंडेंस इसके सीबीआई के ऊपर कौन रखेगा, सीबीसी, ठीक है, कि काम ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही, कोई देखने वाला होना चाहिए ना, ठीक। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो बिफोर कोरोना, जस्ट कोरोना से थोड़ा टाइम पहले, स्पेशल डायरेक्टर जो सीबीआई के थे और डायरेक्टर, इन दोनों में लड़ाई हो गई थी आपस में ही, मतलब इन द सेंस कि दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट एलिगेशंस लगा रहे थे, वो भी ओपन मीडिया में आके, ठीक है। एक जो स्पेशल डायरेक्टर उस टाइम के थे वो हमारे अभी सीपी हैं दिल्ली, ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, ठीक। सो उस टाइम पे सीबीसी को ही गवर्नमेंट ने बोला था, चीफ विजिलेंस कमिश्नर को, ठीक है, चीफ विजिलेंस कमीशन इज अ बॉडी एंड चीफ विजिलेंस कमिश्नर इज अ पर्सन हु हेड्स दिस कमीशन, ठीक है। सो इनको बोला था कि इंक्वायर करो एंड रिपोर्ट दो, ठीक है, क्या मसला है, ठीक। सो इन्होंने फर्दर रिपोर्ट दी थी, उसके बेसिस पे फिर फर्दर इंक्वायरीज हुई, ठीक है। सो विनीत नारायण का अपने ध्यान रखना है, इन्होंने अभी एक्सटेंशन ऑफ सीबीआई ईडी डायरेक्टर के टेन्योर पे क्या बातें कही है, इन्होंने 2 चीजें कही है। फर्स्ट कि गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से कर दिया, दिस इज आर्बिट्रेरी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि मिनिमम टर्म टेन्योर जो है वो 2 इयर्स की होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से ऐसा नहीं करना चाहिए था। फर्स्ट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट से सजेशन लेना चाहिए था, आई मीन बात करनी चाहिए थी, ठीक है, कि इज, आई मीन what we are thinking is feasible or not, first thing. Second thing, even the opposition is saying, and even what he said is government should have waited, because अभी क्या हो रहा है कि I mean इसी मंथ के एंड में पार्लियामेंट इन सेशन होगी, ठीक है। So government should have waited and get it passed through the parliament. Why in hurry to issue ordinance? So these are the 2 questions, ठीक। So that this is what his comment was all about, even की opposition party ने भी लगाए allegations. So twister 3, which among the following is correct with respect to CBC? Yes, हाँ जी विवेक। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं सुपरिंटेंडेंस की बात कर रहा था तो एक लाइन बोला था मैंने, आंसर वहीं से आ जाता है, पता है ना सबको ये क्या होते हैं, डिफरेंस पता है ना सबको। यस सोमेश्वरी। So B. बी, ओके। रिधि, रिधि Yes, sir. क्या है आंसर? Sir, I don't know. Sir, B या C में से ही है। बी और सी कुछ भी होगा? सर इसमें से ही है।
एक बताना होता है ना, इसमें से तो दोनों हो सकता है। मोनिका? बी सर। बी और डी? बी। ओके, कलिंदी? So I'm not sure, but I think it's C. ए? ओके। C. अच्छा, सी। ओके, सो आंसर किसी को नहीं पता? एक ने जरूर बताया था, एक ने किसी ने बताया था, सौम्याश्री में भी। हाँ, सो द दिस इज करेक्ट बिकॉज सीबीसी एक्ट है हमारे पास 2003 2005 2003, ठीक है। इनिशियली जब ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी बॉडी, तो दिस वाज जस्ट अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट इन 2003 दिस बॉडी वाज ग्रांटेड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है। सी। Apex Vigilance set up by the government in February 1964 by an executive resolution. So till now, I mean, in 64 this was extra constitutional body, ठीक है। It got statutory authority only in 2003 through this act, Central Vigilance Commission Act, ठीक। So initially it was executive. Even कि इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए ऐसे भी पूछा जाता है कि इनिशियली, और ऐसे भी कि सिंस बिगिनिंग सीबीसी वाज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। समझ रहे हो? तो इस तरह से थोड़ा अगर डिफिकल्ट करना हो तो इस तरह से चीजें करी जाती है। उसके लिए आपको पूरा ही पता होना चाहिए कि इनिशियली क्या था और बाद में क्या हुआ, ठीक। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। हमारा जो दो हमारे जो कॉन्टेक्स्ट थे, दिस इज द फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट दैट इज रिलेटेड टू योर जनरल कंसेंट टू सीबीआई बाय द स्टेट्स, ठीक है। सो जनरल कंसेंट क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि जो भी केसेस होते हैं ना, सो मैंने कहा कि सीबीआई की जो ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, ठीक है। सो जब भी आपको किसी और की ज्यूरिसडिक्शन में जाके इन्वेस्टिगेट करना होता है तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक। जैसे वीजा लेते हैं ना पाकिस्तान जाना हो तो, है। सो पूछना पड़ता है, बट टेररिस्ट ये नहीं पूछते, इसलिए उनको टेररिस्ट हम बोलते हैं क्योंकि वो इलीगली आते हैं। सो सीबीआई मेड अ सबमिशन टू द सुप्रीम कोर्ट, जिसके में बात करते हैं 28 सिंस 2018 अराउंड 150 रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन टू इन्वेस्टिगेट केसेस हैव बीन पेंडिंग, ठीक है, विद 8 स्टेट्स because they have withdrawn general consent to the agency. यहाँ पे झारखंड, केरला, मिजोरम 3 और 5 ये सामने आपके, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़। Why so? Because all have opposition, rural party. You are wrong, absolutely wrong. मिजोरम में बीजेपी साथ में रूल कर रही है अलायंस बना के। माइनॉरिटी शेयर होगा बीजेपी को, क्या वो फर्क पड़ता है? कुर्सी तो चल रही है, डर तो कुर्सी बचाने की होती है ना, माइनॉरिटी मेजॉरिटी से क्या लेना, ठीक है। सो वन कॉमनैलिटी इज यस व्हाट विवेक सेड कि और हर जगह ऑपोजिशन है, बट दिस इज नॉट ट्रू। आगे हम देखेंगे कि दिस इज नॉट द केस। आई मीन जब से सीबीआई बनी है तब से ही ऐसा चलता है। कांग्रेस वालों ने भी अपने टाइम में ऐसे किया था, हर किसी ने किया था। सो इट इज यू नो मैटर ऑफ कि गवर्नमेंट क्या सोचती है उस पर्टिकुलर, आई मीन नॉट इवन द मैटर, द रियल truth is that what kind of cases the CBI is taking up, ठीक है। अगर कुछ ऐसे केसेस के साथ डील कर रही है जिससे पार्टी इन पावर को नुकसान हो सकता है या कुछ कोई खास बंदे इन्वॉल्व हो, हाँ, सो द बेस्ट वे आउट इज, बचने का जो तरीका है कि कंसेंट ही डिनाई कर दो। इतनी गलत चीज है। आपने बंद रास्ता ही बंद कर दिया कि भाई आ ही नहीं सकते। ये देख सकते हो कि आंध्रा ने भी किया था, गोवा ने भी किया था, उत्तराखंड ने भी किया था। सिंस दोनों ही सरकार है ना, डन सो बट लेटर ओवरटर्न द डिसीजन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंसेंट 2 तरीके की होती है। जनरल कंसेंट होता क्या है? देखो, अप्रूवल गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द सीबीआई, ठीक है, originated from this act only, DSPE, ठीक।
एंड अदर एजेंसी कवर्ड बाय द दिल्ली स्पेशल, ठीक है, एक्ट। उसके बाद द कंसेंट इज नेसेसरी एज अ जुरिसडिक्शन टू द एजेंसी इज कन्फाइंड टू दिल्ली ओनली, ठीक है, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना कि कंसेंट चाहिए ही क्यों, ऑल इंडिया एजेंसी फिर कंसेंट की क्या जरूरत है। द रीजन solely being that the jurisdiction of CBI is confined to Delhi only because this is a special wing of Delhi police, ठीक। जनरली यू कैन सी कि जब सीबीआई को डिनाई कर दिया जाता है तो क्या हो सकता है, सीबीआई नीड्स टू सीक केस ऑन केस बेसिस, ठीक है। सो हर केस वाइज, ठीक है, केसेस के बेस पे आपको कंसेंट लेनी पड़ती है, ठीक है, सुन रहे हो, ठीक। सो आपको केसेस टू केसेस बेसिस पे परमिशन लेनी पड़ती है सीबीआई को, जब भी डील करने होंगे तो हमेशा ये काम है कि पहले परमिशन दिया जाए, ठीक, हर केस से पहले, अगर जनरल कंसेंट डिनाई कर दिया स्टेट्स ने तो, ठीक। स्पेसिफिक कंसेंट क्या होता है, अगर इसमें अगर डिनाई कर दिया हो तो सीबीआई ऑफिशियल्स विल नॉट हैव द पावर ऑफ पुलिस पर्सनल व्हेन दे एंटर दैट स्टेट। दिस हैपेंड विद ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था उसके साथ यही हुआ था कि जैसे ही सीबीआई लैंड करी मुंबई बोर्ड, वहां पे उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है, गेटिंग दैट। इवन कि जो बिहार से एसपी आए थे, ही वाज ऑल इंडिया आई मीन आईपीएस ऑफिसर, उनको भी क्वारंटाइन कर दिया था, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। सो ऐसा होता है कि आप जब एंटर करते हो, अगर आपको स्पेसिफिक ना ग्रांटेड हो कंसेंट बट फॉर दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है, स्पेसिफिक समझ रहे हो ना, स्पेसिफिसिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर केस, ठीक। सो उस केस में आपको, आप जैसे ही एंटर करते हो तो आप एक आम इंसान बन जाते हो, आप इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर नहीं रह जाते। एक गवर्नमेंट ने परमिशन दी है उस स्टेट में, मतलब एक पर्टिकुलर केस में इन्वेस्ट करने के लिए, बट उस गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस है, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, ठीक है, बट स्टेट ने डिनाई कर दी, ठीक। सो हाँ, दिस इज होल मेस गोइंग ऑन, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। अगर तो पहले वाला जब कंसेंट में सीबीआई केस वाइज कंसेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम कंसर्न स्टेट, अगर एक बार मना कर दिया तो फिर दोबारा मतलब हर केस के बेसिस पे नहीं, एक बार मना कर दिया ना, दोबारा आपको मांगना है। अच्छा, एक बार मना कर दिया ना तो वो एंटर तो करेगी पर ऑर्डिनरी करेगी, उसका पावर नहीं होगी, पुलिस एज अ कॉमन इन्वेस्टिगेटिव पावर नहीं होगी ना, आपको इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन ही नहीं है, सो यू आर पावरलेस, ठीक है। आपकी पावर पुलिस, जो लोकल पुलिस है उसके बराबर भी नहीं है, उल्टा आपको वो पुलिस अरेस्ट करके जेल में डाल सकती है अगर आपने कुछ ऐसे वैसे कर दिया कांड तो, ठीक। केक लग रहा है क्या, बर्नर है, जल रहा है कुछ। Can withdrawal mean that the CBI can no longer prove any case? बजने दो, ध्यान कहाँ है आपका। Can no longer prove case, ठीक है, yes indeed कर सकती है। The CBI would still have कुछ exemptions है ना, कुछ वो है, still have the power to investigate old cases जो ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, जिसपे सपोज नॉर्मल टाइम्स में स्टेट्स ने, सपोज एक टाइम पे उसी पार्टी की सरकार थी जिसकी सेंटर में है, ठीक है, इलेक्शन होता है, वहां पे उस पार्टी चली जाती है, तो परमिशन तो उस पार्टी ने दे दी थी ना जब पावर में थी, उस केस के रिलेटेड कोई केस XYZ था, बट हुआ क्या कि जब 6 महीने साल के बाद इलेक्शन हुए और वो अभी तक केस चल ही रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी तक, सो वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो चेंज होते ही क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल भी आप देख सकते हो, तो चेंज होते ही क्या होता है, वैसे गवर्नमेंट वहां चेंज नहीं हुई बट दूसरी पार्टी की होती तो हो सकता है कुछ और होता, बट चलो जो भी है। सो इस केस में क्या होता है कि अगर दूसरी पार्टी आ गई, ठीक है, पावर में, तो उस केस में क्या होगा फिर कि हो सकता है कि वो डिनाई कर दे, तो केस वहीं पे रुक गया, ठीक है, बट उसको डिनायल को माना नहीं जाएगा, दैट वोंट बी वैलिड बिकॉज दिस वाज ऑलरेडी गिवन बाय, अदरवाइज फिर तो ये मजाक ही हो गया।
अगले साल 5 स्टेट में चुनाव है, फिर वहां के केसेस आधे हो गए हैं, आधी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, अपनी पैसे जो भी है सारा कुछ खर्च कर चुके हैं हम, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंस, सब कुछ, ठीक है, पेट्रोल इतने फूंक चुके हैं, और फिर मजाक हो जाएगा फिर तो कि बस बंद कर दो फ्लाइट। हाँ हाँ, समझ रहे हो? तो इसको आई मीन दिस इज वन वे आउट। फिर केसेस रजिस्टर्ड एनीवेयर सपोज एल्स इन द कंट्री बट इन्वॉल्विंग पीपल स्टेशन इन स्टेट्स व्हिच हैव विथड्रॉन कंसेंट। इसमें क्या है, सपोज आप पंजाब से हो, ठीक है, आपने कोई क्राइम किया दिल्ली में, ठीक, कुछ भी ऐसा किया, ठीक है, और आप वापस भाग के आ गए अपने स्टेट में, और आपके स्टेट ने, पंजाब ने वैसे भी डिनाई किया हुआ है, हमने पिछले स्लाइड्स में देखी थी, ठीक है, जनरल कंसेंट नहीं दी हुई है सीबीआई को, सो सीबीआई वोंट बी एबल टू इन्वेस्टिगेट, बट सिंस दैट क्राइम वाज डन अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ सीबीआई इन दिल्ली, ठीक है, और ये क्राइम कहीं ऐसे स्टेट में की गई है जहां पे ऑलरेडी कंसेंट गिवन है, ठीक है, और चाहे आप भाग के कहीं भी चले जाओ, ठीक, फिर भी आपके ऊपर केस चलेगा। अगर नहीं है फिर तो बात ही, फिर तो पॉइंट 1 से ही खत्म होगी ना। ओल्ड केस में होगा, फ्रेश आप केसेस नहीं रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है, समझिए बात। दो कंडीशन है, फर्स्ट यहाँ तो केस ऑलरेडी चल रहा हो, ओल्ड केस हो कोई, ठीक है, न्यू आप रजिस्टर नहीं कर सकते विदाउट कंसेंट। सेकंड में कि उस पर्टिकुलर आई मीन स्टेट ने कंसेंट दे रखा हो जिसमें क्राइम हुआ है, बट आप भाग के अपने होम स्टेट में चले जाते हो, सपोज जहां पे सीबीआई को परमिशन ग्रांटेड नहीं है, ठीक है, फिर भी क्योंकि आपने क्राइम वहां किया है तो उस जुरिसडिक्शन में परमिशन ग्रांटेड है, और अगर आपने दिल्ली में किया है फिर तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि वो तो हेडक्वार्टर है अपना, ठीक, तो वहां से तो भाग ही नहीं सकते कहीं भी, ठीक, तो कोई भी काम करना दिल्ली में नहीं करना, ये 8 स्टेट्स में कहीं करना जो परमिशन नहीं है, ठीक, तो इसलिए नो, आंसर इज नो, ठीक। Have states started denying consent only after the present government came to power in Delhi? Valid है? So the answer is again no. States including Sikkim, Nagaland, Chhattisgarh and Karnataka ही है, have done this throughout the history. ठीक है, तो इनकी हिस्ट्री ऐसी है, क्या कर सकते हैं? प्रीवियस केसेस कुछ एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो, बिकॉज मैंने कहा ना कि जब भी आंसर लिखो तो आपका आंसर बैलेंस्ड होना चाहिए। अब हो सकता है कि आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप कंक्लूजन में लिख दोगे कि हाँ पार्टी अलग है इसलिए ऐसा चल रहा है, बट ये वैलिड नहीं है, हिस्ट्री में ऐसा पीछे हो चुका है, समझ रहे हो, सेम पार्टी सेंटर में हो, सेम स्टेट में हो, तो भी डिनाई कर देते हैं। इन 1998 द जनता दल गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर जो थे JH पटेल withdrew general consent to the CBI in Karnataka. The Congress government of SM Krishna, जो बाद में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे ये कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, ये शिवराज सिंह चौहान कौन है भाई? चलो मैंने मध्य प्रदेश की बात ही नहीं की है, वहां पे सब क्लियर है। The Congress government of SM Krishna, which took over in 1999, did not revoke the previous government's order. ये वाला ऑर्डर कर्नाटका में ही थे, ये ना कर्नाटका से ही थे, ठीक। सबसे बेस्ट एग्जांपल शायद इसीलिए अभी चुप है सब, द होम मिनिस्टर, इस कैबिनेट में SM कृष्णा के अंडर जो होम मिनिस्टर थे वो थे आज के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो करंट LOP हैं राज्यसभा में, तो ये पार्टी तो बोल ही नहीं सकती, नहीं तो ये हम दिखा देंगे, समझ रहे हो बात। तो ये तरीके हैं, ठीक, समझ गए बात। सो अगेन द आंसर इज नो। ये कहते हैं अब हमने भी नहीं देना भाई। सो इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? नो न्यू केसेस रजिस्टर्ड, जैसे पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। लूजिंग पावर, सीबीआई ऑफिसर विल लूज ऑल पावर्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर एज सून एज दे एंटर द स्टेट अनलेस, दोनों ही पॉइंट की हम बात कर चुके हैं, बट स्पेसिफिकली अगर आपको इफेक्ट्स देखना हो तो ये दो मेजरली इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो हमें जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। मोटो याद रखना भाई, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी।
इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस क्या होता है? व्हाट इज इंडस्ट्री? हाँ, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी तो पता ही है। इंटीग्रिटी पे 10 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। पर पार्शलिटी तो बहुत ज्यादा है, इसके बहुत से पार्शलिटी करते हैं। चलो, कोर्ट्स का क्या स्टैंड है? सिंस केसेस ज्यादातर बंगाल में रजिस्टर्ड हुए थे और ये कहा गया कि भाई वहां पे जो जज है वो किसी पार्टी के खास हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है। सो कैलकाटा हाई कोर्ट रिसेंटली रूल्ड इन केस ऑफ इलीगल कोल माइनिंग एंड कैटल स्मगलिंग बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई। ठीक है। सो वहां पे बंदों की तो ट्रैफिकिंग करते ही है, जैसे हमने कल बात की थी। वहां पे कोल माइनिंग, एयर माइनिंग तो हर जगह ही होता है इलीगल, हर स्टेट में ये हाल है। एंड एवर की बकरियों को भी, कैटलों को भी कर देते हैं। हाँ, सब कुछ पता नहीं, भैंस, हाथी, सब। ठीक है। अगर इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर देते हैं तो फिर बंदे की क्या करती है? सेंट्रल एजेंसी कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम प्रूविंग। तो क्या कहा हाई कोर्ट ने? नाउ द आंसर में ये चीजें कोट करनी होती है, आप इसको कोट कर सकते हो, बट यहाँ पे एक पॉज भी है। सेंट्रल एजेंसी कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम प्रूविंग एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये क्या कहते हैं स्टेट्स वाले कि यार हम कंसेंट डिनाई तो कर रहे हैं लेकिन हम उसके खिलाफ कर रहे हैं जो ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर है। ये तो मजाक ही हो गया। ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर है, सबसे पहला राइट बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, डीओपीटी का। डीओपीटी कम्स अंडर योर सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल। सो हाउ कम यू डिनाई ऑल इंडिया सर्विस के अगेंस्ट अगर कुछ करप्शन चार्जेस लगे हैं तो? समझ रहे हो बात? सो दिस इज द केस। ठीक। सो दिस वाज वन वैलिड आर्गुमेंट, बट अब ऑप्शंस है हमारे पास, तो फिर हम पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। एंड यहाँ पे केसेस वैसे ही पेंडिंग बहुत रहती है, तो ये कहते हैं कि यार तब तक इलेक्शन करा लो फिर देखते हैं। ठीक। उसके बाद मिश्रा जी के केस में क्या होता है? वर्सेस सीबीआई, कैलकाटा, अगेन कैलकाटा हाई कोर्ट रूल्ड इन जुलाई दिस ईयर ओनली 21 में, ठीक है, दैट करप्शन केस मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। एंड अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, could not be distinguished just because his office was located in a state that had withdrawn general consent। अब एक बंदा IAS ऑफिसर है, वो चाहे पंजाब में बैठा है चाहे केरला में बैठा है, क्या फर्क पड़ता है? करप्शन किए तो करें, और ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर है और ऑल इंडिया एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो सो हाउ कम यू लॉजिकली डिनाई? बट दिक्कत है कि लूपहोल्स हमारे लॉ में है, दे कैन डिनाई। द थिंग इज दे हैव द राइट टू डिनाई। सेक्शन 6 एंड 7 जो है आपके ये डीएसपी एक्ट है, वहां पे क्लियरली मेंशन है दैट द स्टेट कैन डिनाई। ठीक। सो दिस इज अ केस। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे था, उसमें ये कहा, कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के केस में तो नहीं पॉसिबल भाई। ठीक है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के केस में कर सकते हो। अगर एम्प्लॉय सपोज स्टेट की भी सिविल सर्विसेज होती है, पीसीएस, हाँ, तो उसका कोई ऑफिसर है या कोई भी ABCD जो मर्जी एम्प्लॉयड हो, ठीक है, अगर उसने कुछ ऐसा किया है, ठीक है, देखते हो ना कि आपको एक्सीडेंट्स, इवन कि ड्राइवर के पास भी करोड़ों रुपए नहीं मिलते हैं। ठीक है। कुछ लोग चूल्हे पे जला रहे थे, नोट है। सो ऐसे ऐसे बहुत, आई मीन छोटे पोस्ट पे आपको देखते हो करोड़ों रुपए रखे हुए बनाए हुए। सो उनके खिलाफ अगर करना हो तो ये आपकी मर्जी है। अगर आपने भी अगर शेयर करना है उसमें से कुछ, तो ठीक है, डिनाई कर दो। Getting that? So the court said in simple terms कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में डिनाई नहीं कर सकते, बट स्टेट गवर्नमेंट के केस में कर सकते हो, बिकॉज जो आपका एम्प्लॉय है, जो मर्जी करो। Getting that? क्योंकि टोटली जो जुरिस्डिक्शन है वो आपकी बनती है ना। बट अगेन रास्ता खुला है सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एक बात करी होती तो कुछ हो सकता था, बट हाई कोर्ट ने करी है तो सुप्रीम कोर्ट तो हम जा ही सकते हैं। इनके लिए तो फर्स्ट होता है, लास्ट नहीं होता है। ये छोटी मोटी जगह जाते ही नहीं है, सीधा सीबीआई नहीं, खास करके पार्टी सीधा सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं सबसे पहले। ठीक। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड? हमने सारी प्रॉब्लम्स तो गिना दिए भाई, बट हमारा काम प्रॉब्लम गिनाना नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सो द प्रेजेंट गवर्नमेंट सिंस बिगिनिंग, आई मीन जब भारत आजाद हुआ तब से ही ये कह रही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म
सो नीति आयोग ने दिया है कॉन्सेप्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पेटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। पहले भी मैंने ये पूछा था एंड बताया भी था। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? फर्स्ट ऑफ ऑल कलिंदी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव एंड कॉम्पेटिटिव फेडरलिज्म? आप सब लोगों ने जरूर सुना होगा, एक लेक्चर में हम इसके ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं, मुझे याद है, आप लोगों को शायद याद ना हो, करंट अफेयर्स की क्लास में करी थी। यस कलिंदी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म? So cooperative federalism was like when states together cooperate with each other, and competitive federalism was when there is a slight sense of competition between them, so that the work efficiency grows. बिल्कुल ठीक है। सो जैसे आप देखते हो ना कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स पब्लिश कर रिलीज करती है देश नीति आयोग, ठीक है। सो बेसिकली वहां पे मोटिव यही होता है कि जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण है आपका, मतलब जो भी इंडाइसिस होते हैं, ठीक है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या इंडाइसिस है स्टेट्स के, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, अब इंडिया का नहीं आएगा, बंद हो चुका है, ठीक। सो यहाँ पे जो पीछे स्टेट्स हैं, जो लैगर्ड स्टेट्स हैं, उनको एक बूस्ट देने के लिए, प्रमोट encourage करने के लिए इस तरह की कॉम्पिटिशन कराई जाती है, सो दे कैन लर्न फ्रॉम द वंस द स्टेट्स विच आर डूइंग वंडरफुल, ठीक है, विच आर डूइंग बेटर देन देम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज इंडाइसिस, और जो भी जो भी वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरामीटर्स जो भी हैं, जैसे आपका स्वच्छ भारत अभियान है, उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण करके एक इंडेक्स आती है, सो ऑन डिफरेंट सेट्स। सो इस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। सो प्रेजेंट गवर्नमेंट का ध्यान स्टार्टिंग से रहा है, ठीक है, आजादी से ही, कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेंगे। बट हुआ क्या कि आप लोग एग्जांपल्स देख सकते हो, ये इन प्रैक्टिस नहीं हो पाया, ठीक है। फ्रिक्शन तो आती रहती है घर में, जब कहते हैं कि दो बर्तन इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो फिर बाकियों की बात करनी है, अपोजिशन तो अपोजिशन ही होता है। सो सीबीआई हैज टू कैरी इट्स ओन इमेज, ठीक है, whatever comes in on its plate, it should investigate with 100% professionalism, ठीक है। सो आपने आईपीएस का जब पेपर क्लियर किया था, तो आपने एथिक्स का पेपर लिखा था, तो उसको याद रखना है कि मैंने क्या लिखा था, ठीक है, एंड फिर इन्वेस्टिगेट करना, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। पर उम्र बहुत हो जाती है, तब तक हम भूल जाते हैं। पेपर दिया था यार 30-40 साल पहले, कहाँ याद होगा, तब तक तो हम बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। विदाउट एनी फियर ऑफ फेवर, ठीक है। स्टेट्स रीस्टोर द जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई, ये तो शायद ही हो कभी। द रोल, जुरिस्डिक्शन एंड लीगल पावर्स, हाँ, रोल जो है क्लियर कट होनी चाहिए, जैसे सैंक्शन, जैसे परमिशन लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये सब ड्रामेबाजी बंद करो, ठीक है। अगर ये ऑल इंडिया सर्विस है तो ऑल इंडिया ही रहने दो, ठीक है, सर्विस, सॉरी, ऑल इंडिया एजेंसी है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन जो है वो दिल्ली से नहीं, ऑल इंडिया करो, ठीक, जैसे एनआईए की है। लीगल पावर्स दो, मींस इसके लिए सेपरेट एक एक्ट लेके आओ, जैसे वी हैव दिस सीबीसी एक्ट, ठीक है, इसको भी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ, ठीक, हाँ। तो ये सब करोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मेजर चेंज आएगा, जुरिस्डिक्शन इसकी ऑटोमेटिक इनलार्ज हो जाएगी। जब इनलार्ज हो जाएगी फिर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, फिर सीएम ज्यादा बोलते हैं तो उसको भी उठा लो, तो कुछ भी हो सकता है। सो इट विल गिव इट अ गोल। सो इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी ये सब करने की? इट विल गिव अ गोल क्लैरिटी एंड रोल क्लैरिटी। इसको पता है कि हमें क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, एंड रोल भी पता है कि करना क्या है। ऑटोनॉमी इन ऑल स्फीयर्स, है ना, आजादी अपने आप आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रोल, जुरिस्डिक्शन एंड लीगल पावर दो, ठीक है। लीगल पावर कैसे आएगी? थ्रू एन एक्ट, ठीक है, जैसे सीबीआई के लिए स्पेशल एक्ट ले आओ, इनेक्ट करो पार्लियामेंट से, इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ, सो दैट ये ऑटोनोमस होकर फंक्शन कर पाए, ठीक है। एंड देन कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है। ऑटोनॉमी मतलब ये स्टेट हैव नो रोल टू ये ऊपर वाली बात कर रही है कि स्टेट्स रीस्टोर द जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन।
तो मतलब सीबीआई एज केस में कोई रोल ही ना हो सीबीआई को प्रूव करने में या इसको। हाँ वो यहाँ से होगा ना, अगर हम सेपरेट एक्ट लेके आए, इसकी जुरिडिक्शन को दिल्ली से हटा के अगर डीएसपी एक्ट से हटा के सेपरेट एक्ट लाते हैं तो ऑब्वियसली बात ही खत्म हो गई। डीएसपी एक्ट जो है ना उसमें से टोटली इसको रिमूव करें। हाँ हाँ, सो इस तरीके से एक सेपरेट, जब आप जैसे सीबीसी एक्ट है हमारे पास, ठीक है, वैसे आप सीबीआई एक्ट लेके आओ, पार्लियामेंट के थ्रू इनेक्ट करो, ठीक है, इसकी जुरिडिक्शन ऑल इंडिया कर दो, आपके हाथ में इनेक्ट करो भाई, किसने रोका है, ठीक है। नहीं तो गवर्नमेंट रीजन क्या है, कुछ ऐसा है क्या ऐसा है कि इसको, ये तो बड़ी चीज सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि 8 स्टेट्स ने डिनाई कर दिया कंसेंट। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं आ रहा है, ये लिखा हुआ उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं आ रही आगे इनेक्ट करने। अच्छा देखो भाई, क्या है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इनेक्ट कर देगी और इतना पावर दे देगी तो फिर ये कहेगी हम आपके पास ही पूछने नहीं आएंगे किसकी जांच पड़ताल करें। ज्यादा आजादी अच्छी नहीं होती ना, यू ऑलवेज वांट कि हर चीज मेरे हाथ में रहे, अगर आपके सर पे बैठ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसको पास करने के लिए अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब उसके थ्रू, सो उसके लिए भी वही ना, सीबीआई के ऊपर देखो, एक्चुअली सबसे बड़ा मुद्दा जो है दैट इज रिलेटेड टू इसकी इनेक्टमेंट में, दैट इज सेंट्रल फेडरल आदेश, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, फेडरल स्ट्रक्चर पे आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, ठीक है, फिर झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, फिर पुलिस की इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दोगे आप। लॉ एंड ऑर्डर आपका स्टेट सब्जेक्ट है, सो ट्रांसग्रेशन होगी, आप इंटरवीन कर रहे हो जानबूझ के, फिर ये और ज्यादा इंटरवीन करेंगे। अभी तो कुछ कम कर रहे हैं, अभी तो उनके पास ऐसा है कि हाँ डिनाई कर सकते हैं, अगर उनसे ये ऑप्शन ही खत्म कर दिया कि डिनाई नहीं कर सकते, फिर तो जब मर्जी पहुंच जाए, जब मर्जी सरकार चेंज कर दें, समझ रहे हो। देखते हो ना कि इलेक्शंस होने वाले होते हैं उसके पीछे सीबीआई ईडी लगा देते हैं, तो मतलब पावर दे दिए बट लिमिटेड वे। इसके लिए एक्चुअली क्या है ना कि इसके लिए अब जैसे क्या है, इस तरह की जो फंक्शंस है ना वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सीबीआई सीबीसी सबको लोकपाल के अंडर ला दो, गवर्नमेंट से सीधा हटा दो, समझ रहे हो। अगर बॉस आप ही हो तो फिर तो आप ही चलाओगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना, चलेगी तो आपकी ही, वो तो लोगों को कहने के लिए कि हाँ भाई ऐसे हो रहा है, बट आप अपनी मन मर्जी करोगे। तो इसलिए कहते हैं जैसे आरबीआई है आपका, आरबीआई आई मीन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, बट उसको भी सेक्शन 7 के थ्रू धमकी मिलती रहती है टाइम टाइम पे, सो यू नीड सम आई मीन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडीज, ठीक है, स्पेशली इन मैटर्स ऑफ सच थिंग्स, जहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे ऐसी बातें हो, क्राइम रिलेटेड इश्यूज हो या ये हो। अब जैसे एनआईए है, एनआईए अपना मजे से काम करती है, उसको कोई इशू ही नहीं है, समझ रहे हो। तो फिर इस तरीके की चीजें होनी चाहिए ना, so that's why Supreme Court said na ki it has become a caged parrot in the hands of and it speaks in the voice of its masters, कि जैसे वो कहते हैं वैसे ही करती है, और सच में काफी सारी जगह देखने को भी मिल जाता है हमें। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस का एंड क्या हुआ, क्या निकला वहां से, नथिंग। तो हमें लगता है ना कि कुछ नहीं निकला, बट सीबीआई को कुछ एविडेंसेस ही नहीं मिले उस तरीके के, तो कहाँ से निकलना था। नहीं तो सर हमें इस पेपर में लिखना है कि केस को कोई ऐसे कैसे लिख सकते हो यार, क्लियर कट सेक्शन 6 जो है आपका डीएसपी एक्ट का, वो देता है कि स्टेट्स कैन डिनाई, वो तो लिखा हुआ है, बट ये इंप्रूवमेंट्स और लाने के लिए कि कैसे और क्या ये वही दिया हुआ है ना कि व्हाट नीड्स टू बी डन। हां, तो व्हाट नीड्स टू बी डन में क्या ये आएगा कि स्टेट्स को कोई रोल नहीं होना चाहिए सीबीआई के साथ, सीबीआई का जहां मन करे हो जाए, मतलब ऐसे नहीं कह सकते आप डायरेक्ट ना, आप कहोगे यही बात, हम कह यही बात रहे हैं, बट हम इस तरह से कह रहे हैं। देखो डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहना होता, आप कह वही रहे हो, इन सब के थ्रू भी वही हो रहा है, बट आपने थोड़ी टेक्निकलिटीज में जाके आपने इस तरह से सजेशन दी कि इस ये करके हो सकता है ऐसा। आप डायरेक्ट लिखोगे तो उसका क्या आर्गुमेंट क्या है उसका, आप कह दो कि हाँ ऐसा नहीं करना। हाँ ठीक है, बट किस बेसिस पे आपकी आर्गुमेंट को आपने सब्सटेंशिएट करो, वैलिडेट कैसे कर रहे हो, वो तो कोई भी लिख देगा, आम बंदा भी लिख देगा। ये ऑटोनॉमी इन ऑल स्फीयर्स लिखा हुआ है, यानी हर चीज। हाँ इसके पुनः बताया किस चीज में, हाँ ये नहीं बताया ना किस चीज में, समझ रहे हो, हर चीज में। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यू फाइंड कि डिप्लोमेटिक स्टैंड्स ली जाती है, समझ रहे हो बात।
तभी कहा जाता है कि अपने आंसर्स को बैलेंस रखना है, क्योंकि अगर आपने एक साइड लिख दिया और सपोज आपका आंसर चेक करने वाला ऐसा है जो किसी खास पार्टी की आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, ठीक है, फिर तो आपको 0 दे देगा। इसलिए बैलेंस लिखना चाहिए, तभी यार एक ना पसंद है दूसरा तो आधा पसंद है, 4 में से 2 नंबर तो मिलेंगे, इसीलिए लिखा जाता है बैलेंस आंसर, और कोई रीजन नहीं उसके लिखने का। समझ रहे हो बात? तो दोनों के लिए हम आंसर लिखते हैं कि अगर एक है जिसको ना पसंद है हमारा आंसर तो भी नंबर मिले, एक है जिसको पसंद है तो भी नंबर मिले, क्योंकि आपने जो फेवर में लिखा उसको अगेंस्ट पसंद नहीं आएगा, जो फेवर वाला होगा, जो अगेंस्ट वाला होगा उसको फेवर पसंद नहीं आएगा। सो बोथ साइड विन विन, आई मीन लूज लूज चांस है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू राइट द बैलेंस्ड आंसर्स। ठीक है, ऑनलाइनर्स क्लियर है? कोई क्वेश्चन सो फार? यस कलिंदी? नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक, समझ आ गई बात विवेक? आप लोग भी एक दिन बैठ सकते हो इस कुर्सी पे, ऐसी कोई बात नहीं है। मिश्रा जी हर जगह हैं, देख सकते हो। ठीक है, हाँ। सो टेन्योर क्या है? आशीष कुमार, बस फिर आप भी पहुंचे हो। टेन्योर्स ऑफ सीबीआई एंड ईडी डायरेक्टर। अब हम आ रहे हैं सेकंड कॉन्टेक्स्ट पे। हमारे 2 कॉन्टेक्स्ट थे फर्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट वाज रिलेटेड टू द जनरल कंसेंट, ठीक है, उसकी हम डिस्कशन खत्म कर चुके हैं। नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द क्या टेन्योर ऑफ सीबीआई एंड ईडी डायरेक्टर्स एक्सटेंडेड। ठीक है, सो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऑर्डिनेंस लेके आई। 2 ऑर्डिनेंस आए। फर्स्ट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021। सिंस अब इसका जो रिलेशन है, दिस इज रिलेटेड टू ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021। सो दोनों को अमेंड किया। दिस डील्स विद सीबीआई। समझ गए बात? योर फर्स्ट सीबीसी जो अमेंडमेंट है ऑर्डिनेंस दैट डील्स विद ईडी, वो कैसे करती है फिर मैं बताता हूं। एंड सेकंड जो है डीएसपी दैट डील्स विद सीबीआई। ठीक है, सो इसलिए दोनों के ही टेन्योर की बात करें, ईडी के भी एंड सीबीआई के भी डायरेक्टर्स की। ठीक है, सो एज पर दिस ऑर्डिनेंस यू कैन सी द चीफ्स ऑफ the top agencies can be given extension every year for up to 3 years। ठीक है, ऐसा नहीं है, अभी भी एक्सटेंशन दी जाती है। ठीक है, अभी भी इनको 1 साल की एक्सटेंशन मिली हुई है। ठीक है, सो मिलती रहती है। अब यह है कि अब लॉ ही बना दिया कि हाँ भाई दे सकते हैं, मैक्सिमम फिक्स कर दी, लिमिट लगा दी ना अपर सीलिंग की, हाँ 3 साल तक। ठीक, ना टोटल 5 साल आफ्टर they complete the 2-year term। 2-year term तो मिनिमम सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया हुआ है, +3 आई मीन प्लस आप एक हर साल 1 साल की एक्सटेंशन देके मैक्सिमम 5 तक आप एक बंदे को रख सकते हो एक पोस्ट पे। ठीक, सो काफी ब्राइट चांसेस है, पहुंचो मेहनत करो अच्छे से। नहीं इस स्लाइड पे थोड़ी सी जगह है तो मैं बात कर लेता हूं जो मैं ईडी की बात करता सीबीसी के रिलेशन में। ठीक है, ठीक, सो मैंने कहा कि सीबीसी के थ्रू जो अमेंडमेंट लेके आई है गवर्नमेंट, उसके थ्रू ईडी के डायरेक्टर जो है उनकी टेन्योर एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, डीएसपी वाली तो आपको पता है कि वो तो डायरेक्टली रिलेटेड टू से वो है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, सीबीसी में जो ऑर्डिनेंस है वो सीबीसी एक्ट को अमेंड कर रहा है। ठीक है, एंड उसके थ्रू जो ईडी है उनकी टेन्योर को बढ़ाया जा रहा है। नाउ यू कैन आस्क कि व्हाई सीबीसी, सीबीसी का क्या रोल है यहाँ पे ईडी के रिस्पेक्ट में। ठीक, ईडी में चेंज करना चाहिए कुछ, जैसे डीएसपी में कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सीबीआई, दैट इज वैलिड, बट व्हाई विद सीबीसी? सो द आंसर इज सिंपल that again the way CBC superintends this क्या बोलते हैं CBI, in the same manner CBC has special role to play in terms of selection of director of ED। देखो जब भी ED या CBI के डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं तो इनके लिए एक कमिटी बनती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट को सपना है और बस जिस बंदे का नाम है उसको बिठा दिया, ऐसे नहीं होता। थोड़ी सी यहाँ पे ये अच्छी बात है, पॉजिटिव है
वो ये कि जैसे ईडी की जब डायरेक्टर की जब सिलेक्शन करनी होती है ना, किसको अपॉइंट किया जाएगी डायरेक्टर, तो एक कमेटी बनती है जिसमें सीबीसी उस कमेटी के हेड होते हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, प्लस 2 वीसी होते हैं विजिलेंस कमिश्नर्स, प्लस सेक्रेटरीज होते हैं फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे सीबीसी का रोल आ जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीबीसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ईडी डायरेक्टर, ठीक है। सो इसलिए सीबीसी एक्ट को अमेंड करके टेन्योर दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक, समझ गए बात? सीबीसी ऑफिशियल हाँ हाँ, ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, तीन होते हैं। डीओपीटी का कोई रोल नहीं है? नहीं, डीओपीटी का इसमें कोई रोल नहीं है। सीबीआई का। अच्छा, ईडी के डायरेक्टर में कुछ गवर्नमेंट कुछ रोल होगा सर, इसमें कोई इन्फ्लुएंस होगा? है तो वहां पे रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी क्यों बिठाया हुआ है? वो अपने बंदे हैं। वैसे तो सीबीसी और वीसी भी सब अपने ही है, हमने ही अपॉइंट किया है। हाँ, अपने नहीं होते तो अपॉइंट क्यों करते? अरे सर सीबीसी बड़ा हेड है ना, मतलब ईडी के अकॉर्डिंग। हाँ यार, सीबीसी क्या है? चीफ विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस समझते हो क्या होता है? विजिलेंट देखना। हाँ, स्पेशली मैटर्स ऑफ करप्शन केसेस, ठीक है, करप्शन चार्जेस, ठीक है। सो ये सबका बॉस है, सीबीआई का भी और ईडी का भी। कभी नाम इतना चर्चित नहीं है, ध्यान नहीं देते आप लोग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे ना, ये हमेशा इंटीग्रिटी प्लेज ऑर्गेनाइज करती है। एवरी ईयर एक वीक मनाया जाता है, एक हफ्ते का, जिसमें विजिलेंस वीक बोलते हैं उसे। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया शायद, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है। हाँ, उसमें आपको यही देखना होता है कि भाई हम ऑनेस्ट रहेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, यही काम है। एक हफ्ते तक यही करना होता है, अगले दिन से आप जो मर्जी करो। ठीक है, ये काम नहीं है, ये तो ये प्लेस दिलाते हैं जनता को भाई। इनकी फंक्शनिंग क्या होती है? इनकी फंक्शनिंग बता रहा हूँ ना, सीबीआई के ऊपर ये नजर रखते हैं। सीबीआई तो अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, फिर उसके ऊपर कोई होना चाहिए ना। अगर सीबीआई का डायरेक्टर करप्शन कर दे, फिर अगर कोई ऐसा केस देख रहा है जिसमें करोड़ों रुपए इन्वॉल्व हो, और होते हैं बड़े बड़े केस देखते हैं, अगर उसने कुछ 1000 करोड़ ले लिए, फिर तभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि जब स्पेशल डायरेक्टर एंड डायरेक्टर सीबीआई के जब आपस में कुछ पंगे चल रहे थे, ठीक है, हाँ, खींचतान हुई थी जस्ट कोरोना से पहले, ठीक है, तो सीबीसी को गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई आप इंक्वायरी करो, जो भी इश्यूज है सॉर्ट आउट करो, क्या माजरा है, और रिपोर्ट पेश करो गवर्नमेंट को, ठीक है। ये रिपोर्ट किसको देंगे? गवर्नमेंट को, डीओपीटी को, ठीक है। और फिर डीओपीटी, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। डीओपीटी इज नॉट अ सेपरेट मिनिस्ट्री, डीओपीटी इज अ मिनिस्ट्री अंडर पीएमओ इटसेल्फ। हाँ, ठीक है, वो सुपर कैबिनेट, उससे ऊपर कुछ नहीं। सो सीबीसी का ये रोल है, समझ के बात? और सर सीबीआई और ईडी दोनों की फंक्शनिंग मतलब समवट सिमिलर ही लगती है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? हो जाएगी, सब्र करो। अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, ठीक। सो दीज आर द ऑनलाइनर्स। एनी इशू? कहीं को क्लैरिटी ना हो? यस, हाँ जी, एनीवन ऑनलाइनर्स? सीबीसी हेड कौन था? सीबीसी जो हेड होता है, उसका नाम क्या है? विजिलेंट ऑफिसर पहले कोई और था, अभी कोई और? नहीं, नाम नहीं चाहिए मुझे, वो पोस्ट का नाम क्या है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर और चीफ विजिलेंस कमीशन, यस, बोथ। चीफ विजिलेंस कमीशन, कमीशन का ही तो कमिश्नर बनता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, चीफ विजिलेंस कमीशन। आप भी बन सकते हो, सरकार से थोड़ी बना के रखनी होती है। आपके स्टार्स अगर ठीक रहे तो जरूर आप भी शाइन करोगे, ठीक है। जब रिटायरमेंट टाइम पे पहुंचते हैं फिर ये सब मिलता है एंजॉय करने के लिए, ठीक है। देख लो, अभी प्रेजेंट ही है एसके जायसवाल
एंड आईपीएस की ड्रेस है भाई, यहाँ पे आईपीएस नहीं लिखा हुआ। एंड ये है हमारे मिश्रा साहब ईडी, ठीक है, विवेक ने देखा होगा इनको तो। हाँ अच्छा, हाँ ये सुबोध कुमार है, ठीक है। सो एट प्रेजेंट ये लोग हैं। सो अब इनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आया, अच्छे दिन आए इनके। अब ये 2 साल से और 3 साल तक रह सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी ही इज IRS ऑफिसर, ठीक है। ईडी का चीफ हमेशा IRS ऑफिसर बनता है। IRS, उनको भी तो कुछ बनाना है यार, सब आपको थोड़ी ना दे देंगे। वो किस लिए बैठे वहां पे बेचारे, सबसे ज्यादा मेहनत वही करते हैं। गवर्नमेंट के रेवेन्यू में सबसे ज्यादा रोल उनका है। आप तो खर्चा करते हो, आप तो उड़ाते हो, आप मजे करते हो, पैसे आपको इकट्ठे करके देते हैं, समझ रहे हो ना बात। सबसे ज्यादा रोल वैसे देखा जाए तो उनका है। पैसे इकट्ठे नहीं होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाओगे यार। तो हर बंदे की कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उनको भी आगे लाया जाता है और लाया जाना चाहिए। इस टाइम पे जो आपके यूपीएससी के चेयरमैन है वो भी IRS ऑफिसर ही है, मोस्ट प्रोबेबली वही है। हाँ तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप कहीं भी हो, बस एक ही सीक्रेट है, बस अच्छा करो, मेहनत करो, पहुंच जाओगे, और कोई सीक्रेट नहीं है, ठीक है। चलो जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस। हाँ बिल्कुल सही, वही कैच है यहाँ पे, 6 months और 6 weeks। मोनिका, व्हाट्स द आंसर? मोनिका आंसर क्या है? यस, कनिका, मोनिका, Only A, sir. ओनली ए, ओके। करेक्ट और इनकरेक्ट? मोनिका करेक्ट बता रहे हो या इनकरेक्ट? सॉरी सर, मैंने देखा नहीं नीचे, इनकरेक्ट। बस फिर देखो ना, फिर एक बार गलती कर चुके हैं, बार बार थोड़ी करते हैं। 4 नंबर के गए आपके, यही तो देखना होता है ना, ध्यान से देखो। ओके रिद्धि, रिद्धि, विजय, सर आई डोंट नो। ओके हाँ जी विजय। बी सर। बी, यस सर। ओके बी, बॉम्बे, ठीक है। और कौन रह गया? कनिका, कनिका, सर नो आई। ओके कलिंदी, सर ओनली बी आई थिंक। ओनली बी यू थिंक, ठीक है। करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। एंड कौन रहेगा? सौम्याश्री, Sir, I think number 4. नंबर 4, नंबर 4, अच्छा। विवेक, सर मुझे तो ओनली बी लगा। ओनली बी। आशीष, एक आंसर लिखना होता है यार, दो नहीं। सर ओनली बी। ओनली बी, ओके। अभी ये कोई ट्रिक नहीं। पहली बात इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। दूसरी बात आर्टिकल 1 to 3 बिल्कुल सही कहते हैं ये, तो 6 मंथ देखना हमने, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। द आंसर इज 4 ओनली।
वो होता है, लगता है हमें, पर ऐसा नहीं है। 6 महीने दे दिए फिर तो बहुत ज्यादा हो गया। आप आगे भी तो पढ़ो कि फ्रॉम द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब अगर प्रेसिडेंट ने, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि साल में मिनिमम जो गैप है, ये नहीं कहता कि कितनी बड़ी सेशन लगनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि साल में, एक साल में पार्लियामेंट के मिनिमम जो सेशन के बीच में गैप है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट सिंपली इम्प्लाइज दैट एक साल में मिनिमम 2 सेशन तो लगेगी। समझ गए बात? 6 महीने से ज्यादा गैप रख नहीं सकते, तो 2 सेशन तो कॉमन सेंस है कि लगने। सो इसीलिए यहाँ पे बात अलग की गई है। उस 6 महीने से, मंथ से इसका कोई रिलेशन नहीं बनता। यहाँ पे ये कहा गया कि सपोज पार्लियामेंट आज अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इनेक्ट किया, ठीक है, प्रोमulgate किया, एंड सपोज पार्लियामेंट जो नेक्स्ट सेशन 6 महीने बाद सीटिंग, पार्लियामेंट की सेशन लग रहा है, and parliament in session after 6 months of issuing the ordinance by the president, ठीक है। So from that time period, from the first sitting of that session, 6 weeks में इसको कानून बनाना होगा, लॉ बनाना होगा, इसको पास कराना होगा पार्लियामेंट से, अदरवाइज दिस वुड लैप्स, खत्म हो जाएगा, ठीक। सो आज से नहीं, जब इशू किया उस दिन से, जब सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो काउंट 6 वीक्स आपका उस दिन से होगा। अगर आपने उस दिन से 6 महीने काउंट किया फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो सेशन पे सेशन चलते जाएंगे। वैसे भी इंडिया में एक साल में कितने कितने सेशन होते हैं? हाउ मेनी सेशंस वी हैव इन पार्लियामेंट ऑनलाइनर्स? 4 4 अच्छा, कौन कौन से कलिंदी? सर समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। हम वेदर की सेशन की सीजन की थोड़ी बात कर रहे हैं हम। सर 3 होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, यस, हु इज दिस? 3 होते हैं सर। रिधि, नेम Yes, 3, sir. नेम 3। सर समर, विंटर, ऑटम। Not autumn. अरे, I'm not asking about the seasons. I'm asking about the sessions. Sir, budget, monsoon, winter. Yes, absolutely correct. First is, देखो अभी विंटर आने वाला है, so winter session अभी इस मंथ के लास्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। Then you have your विंटर के बाद बजट, 1 फरवरी को बजट आता है भाई, ठीक है। सो बजट सेशन, एंड देन गर्मियों में गर्मी सेशन, समर सेशन। यार रेनी और ऑटम यहाँ पे पहले ही काम करने को राजी नहीं हो। वो ऑटम और रेनी में बंदा बाहर रहता है, घर में थोड़ी बैठेगा। यार सीजन्स की बात नहीं कर रहा मैं सेशन की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट की, ठीक है। हम ट्रिप लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, काम करने की बात कर रहे हैं, ठीक। क्लियर कलिंदी? यस सर। ओके, सो क्लियर है ये, कोई डाउट? हाँ, सो इसको हमेशा ध्यान रखना विवेक। 6 वीक्स होता है, हमेशा हम कंफ्यूज करते ही है। मेरे को भी कंफ्यूजन होती थी, बट लॉजिकली अगर ध्यान रखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे कभी भी। अब इतना बस याद रखो कि यार एक साल में 3 सेशंस होते हैं, तो 6 मंथ्स कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस है, वो भी फर्स्ट सिटिंग से। आपके सेशंस ही 6 महीने पे नहीं लगते, गैप ही नहीं है, मिनिमम होने चाहिए, समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। बट हमारे यहाँ इंडिया में 3 सेशंस होते हैं, ठीक। तो इसलिए 6 महीने की जब गैप ही नहीं है तो आपकी 6 महीने की वैलिडिटी कैसे? ये बाहर भी नहीं, एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट। ये सब पॉलिटी में पढ़ोगे, होल्ड ऑन, ठीक। पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, सब कुछ ऐसे ही है, ठीक है। सारा कुछ मैंने ही पढ़ा देना है, ठीक है। भाई इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसा नशा है, ठीक है, जो ऐसा बनाता, इतना नशा देता है कि फिर बंदे को एक साथ रिपीट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का हमेशा क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान रखना कि क्या लिखा है, ठीक है। हर बारी होते हैं ऐसे, हर बारी होते हैं, हमें लगता है यार बस ये तो सुना है, करेक्ट सीधा ठीक मारते हैं, ठीक है। वी आर एज्यूमिंग कि करेक्ट पूछा है, बट नहीं पूछा करेक्ट, ठीक है।
तो इसलिए ध्यान रखना, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, आउट ऑफ 100 आपको सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। सो कॉमन परसेप्शन ये होता है हमारा कि यार सभी करेक्ट पूछ रहे हैं तो करेक्ट ही होगा, ठीक है, बट वो भी तो यही देखते हैं कि सब करेक्ट ही करेगा, ये कुछ इनकरेक्ट भी करा देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। सो इस चीज का हमेशा ही ध्यान रखना आप लोग। अच्छा सर, ये 6 हफ्ते वाला ऑर्डिनेंस मान लो खाली होता है तो इसी ऑर्डिनेंस को रिन्यू करना पड़ता है कि नया? हाँ कर सकते हैं, पता है क्या, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आती है, ऑर्डिनेंस मजाक बन गया वैसे, चलो अगर आपने छेड़ ही दिया है तो बता ही देते हैं हम सच्चाई। ठीक है। सो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद था ना, जो मेजर ऑब्जेक्टिव था इस ऑर्डिनेंस को लाने का, ऑर्डिनेंस वाज इनेक्टेड आई मीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम पे क्या हुआ कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सपोज कोई इमरजेंसी सिचुएशन लाइक है, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन है एंड पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, एंड सपोज गवर्नमेंट को एक लॉ की जरूरत है, ठीक है, सपोज कोई ऐसा लॉ नहीं है हमारे यहाँ, सपोज कुछ ऐसा होने लगे जो बिल्कुल ही आई मीन अनकॉमन सा हो, ठीक है, इंडिया में एट दिस मोमेंट जब सेशन पार्लियामेंट का नहीं लग रहा, ठीक, कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी लगा लो, कुछ मतलब ऐसी कोई चीज हो रही है जिसके लिए लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, तो उस टाइम पे अब हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट के वेट करते रहेंगे, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा यार, समझ रहे हो, है ना, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा राइट दी गई थी, आई मीन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 1 to 3, याद रखना 1 to 3 इजी याद रखना, ठीक है। सो इसलिए ये राइट दी गई थी सो दैट कि जब भी इस तरीके की इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो एंड गवर्नमेंट को लगे कि नहीं हमें कानून की जरूरत है, सो ऑर्डिनेंस वुड बी ऑलवेज प्रोमोगेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दैट इज योर प्रेसिडेंट, ठीक है। बट इसलिए उसमें लगाया गया कि 6 महीने 6 वीक्स की ब्रेक लगा दी गई, मैक्सिमम सीलिंग पुट कर दी गई आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ योर पार्लियामेंट सेशन, इसलिए ताकि गवर्नमेंट मिसयूज ना करे, ताकि ऐसा ना हो कि आप बाईपास कर दो पार्लियामेंट को, जो कभी कभार देखने को गलती से मिल जाता है, ठीक है। सो बट आजकल क्या हो रखा है कि अभी थोड़े टाइम पहले अगर आप देखो तो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, एक ही ऑर्डिनेंस को आप 2 साल से रिपीट कर रहे हो ऐसे हैं, बट दिक्कत ये है जैसे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि पार्लियामेंट के सेशंस लगे ही नहीं ना, जैसे साल में 3 नहीं हुए, बस बजट हुआ और एक और हुआ था, एक तो आउटवर्स हो गया टोटली। सो उसके बाद वो जो लगता है उसमें जब बैठते हैं तो लड़ने शुरू कर देते हैं, कोई किसी की सुनता ही नहीं, तो फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है भाई वो भी फ्रस्ट्रेट होता है, वो भी इंसान है, कहता है कि बस अब अगली बारी बैठेंगे, जाओ बाहर लड़ो, ठीक। सो ऐसे हैं, तो ये चीजें हैं, बट इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है डे टू डे, अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा, इवन कि जो चीजें हमें पार्लियामेंट से कराना चाहिए, अभी यही है ना, फर्स्ट क्वेश्चन यही कहा है ना कि अपोजिशन पार्टी भी यही रेज करें कि इतनी क्या जल्दी थी, इसी महीने में तो सेशन, अब 10 दिन के बाद पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है, 10 दिन तो रुक सकते थे, इतने सालों से रुके हुए तो है, और ये कौन सा बड़ा मुद्दा है, उनको एक्सटेंशन देनी है वैसे दे दो, वैसे भी एक्सटेंशन दी जा सकती है, गवर्नमेंट दे रही है, 1 साल तक दे सकती थी, तो इसमें इतना बड़ा करने का मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन आ पड़ी कि भाई अर्जेंसी इतनी थी कि आपको अभी करना है, दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे से जवाब आएगा कि हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, हम चाहते हैं कि इंटरवेंशन ना हो एजेंसी में, समझ रहे हो, सब कुछ तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है कि देखो, ऑर्डिनेंस तो प्रेसिडेंट ने प्रोमulgate कर दिया, ठीक है, इशू कर दिया, जब आपका सेशन लगता है ना तो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डिनेंस किस के अंडर आता है, जैसे अमेंडमेंट्स हैं हमारे आर्टिकल्स में, अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ अमेंडमेंट्स, वन इज सिंपल अमेंडमेंट, अदर इज हाँ सिंपल मेजोरिटी की अमेंडमेंट होती है, कुछ होती है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, कुछ होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटीज। स्पेशल मेजोरिटी में कि जो आपकी मेंबरशिप ऑफ हाउस है टोटल प्लस 2/3 ऑफ दैट प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं। अब इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, या जैसे बंगाल में अभी स्टेट काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है, जहाँ पे काउंसिल नहीं हो, हम कर चुके हैं डिस्कस। सो इस केस में क्या होता है कि इन दिस काइंड ऑफ केसेस यू नीड सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सो कोई रोला ही नहीं है, सिंपल तो अपनी ही है, और किसी की क्या बात करें, हाँ 50+1, 50% +1, ठीक है।
सो यहाँ पे कोई इशू नहीं होता है सच। डिपेंड करता है ऑर्डिनेंस आ किस चीज को कर रहा है। हाँ डिपेंड करता है कि किस है? क्या हो रहे हैं? अच्छा तो ठीक है बैठो, जाओ जाओ। तो इस तरीके से ठीक है, समझ गए कि डिपेंड ये करता है कि आपका जो ऑर्डिनेंस है वो किस, समझ रहे हो, किस आर्टिकल या किस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंडर आता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है उस चीज का। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर ऑर्डिनेंस उस तरीके से फिर आई मीन जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट की वो यहाँ पे लगता है। ठीक है, पार्लियामेंट में। सिंपल। और कोई क्वेश्चन नहीं? सो ऑनलाइनर्स कोई डाउट है? ऑल आर इंटेलिजेंट, सब क्लियर है या नथिंग क्लियर? सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस, what provisions we have? So first is your 1 2 3 जिसकी हम बात कर चुके हैं, authorizes the executive to promulgate ordinances if certain conditions are satisfied. ठीक है, conditions क्या हैं? If at least one house of the parliament is not in session. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? अब इसका क्या मतलब है? सपोज जैसे यार पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, यू नो कि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। ठीक है, बट सपोज राज्यसभा तो है, बट राज्यसभा अपने सेशन चल रहे हैं उसमें राज्यसभा तो वर्किंग है, बट सपोज गवर्नमेंट मेजोरिटी लूज कर जाती है, कुछ ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं जहाँ पे यहाँ लोकसभा फंक्शनिंग नहीं है। ठीक है, हाँ उस केसेस में सपोज क्या होता है कि लोकसभा सस्पेंड हो जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेट नहीं, लोकसभा को अगर आप थोड़े टाइम के लिए अगर स्पीकर डिसमिस कर देते हैं, ठीक है, या एक और वर्ड है उसके लिए, द हाउस हैज बीन पोस्टपोन। ठीक है, अगर एडजर्न, ठीक है, एडजर्न कर देते हैं, ठीक है, हाउस के सेशन को, और ऑलरेडी आपकी जो राज्यसभा है दैट इज फंक्शनल वर्किंग। ठीक है, बट लोकसभा में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ठीक है, कोई सुन नहीं रहता, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम 4 दिन के बाद बैठेंगे। ठीक है, अब बाहर बात करते हैं। ठीक, सो इस केसेस में आप कर सकते हो, बिकॉज यू नो कि हाउस ऑफ जो पीपल है दैट इज लोकसभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन की मनी बिल्स के केसेस में क्या होता है कि सुप्रीम जो अथॉरिटी है दैट इज ऑफ योर लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। तो कुछ क्या बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पे लोकसभा की अपर हैंड होती है। ठीक है, समझ रहे हो, बिकॉज जो आपकी जो गवर्नमेंट है, जिनको आपने चुना है, दे are mostly the member of parliament in Lok Sabha. They represent the house of people or the lower house, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, वो लोगों की सभा है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव्स आपने चुन के लोगों ने उनको भेजा है, उसमें बिठाया है। तो जो भी कानून बनना है उनकी सहमति ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा तो पोस्ट रिटायरमेंट एंजॉय करने के लिए है। ठीक, उसके बाद प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी। अब ये नहीं बताया कि कौन सी, मतलब क्या सेटिस्फेक्शन किस बेसिस पे, कुछ नहीं पता, बस सरकार को लगता है कि हाँ जरूरी है तो बस ठीक है, लिख देंगे लाइन की, हाँ प्रेसिडेंट फेल्ड दैट यस सिचुएशन हैज बीन अराइजन वेयर इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, हाँ समथिंग। सो दीज आर द 2 कंडीशंस। बात वही घुमा फिरा के आ जाती है कि जब पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं चल रहा तो ऑडियंस कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस लैप्सेस एट द एंड ऑफ 6 weeks फ्रॉम द टाइम पार्लियामेंट नेक्स्ट मीट्स। ठीक है, सो अगर एक सेशन जो विंटर का सपोज खत्म हो, जैसे समर जो सेशन था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, बजट के बाद समर एंड समर के बाद अब विंटर आने वाला है। ठीक है, तो विंटर स्टार्ट हो रहा है। सपोज ऐसी कोई ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ने समर सेशन एंड होने के 1 महीने के बाद इशू की। ठीक है, so that would continue till the winter session, till the sitting of winter session, and that would be valid from the first sitting to 6 weeks. ठीक है, इन 1.5 महीने में 1.5 महीने में 1 महीने 1.5 महीने जितना भी टाइम होता है 6 weeks, उसमें आपको पास करा लेना है। अगर वो डिफीट हो जाती है आपकी वो बिल, ठीक है, यहाँ रिजेक्ट हो जाती है आपकी, सो
वो लॉ नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब कानून बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का काम ही है लॉ बनाना, वी कॉल इट ना लेजिस्लेचर। सो लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेट करना, ठीक। सो इसलिए उससे आप छीन नहीं सकते ये जो राइट है, इसलिए अल्टीमेटली घूम फिरा के पार्लियामेंट में जाता है, ठीक। अगर सरकार को लगता है कि यार इम्पोर्टेंट नहीं था, इतना नहीं चाहिए, तो सरकार पहले ही खींच लेती है। प्रेसिडेंट कैन एनी टाइम रिजेक्ट और रिवोक दिस, हाँ, टेक बैक और व्हाटएवर, ठीक है। सो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए रख लेते हैं, सेशन आएगा उससे पहले टर्मिनेट कर देंगे, बट फिर वैलिडिटी खत्म हो जाएगी ना किसी भी चीज की, ऐसा नहीं होता है। तो जस्ट सिमिलर प्रोविजंस आल्सो एग्जिस्ट फॉर स्टेट गवर्नमेंट अंडर 213। तो इसको याद रखना, पहले 1 2 3 आता है, पहले 1 से स्टार्ट होएगा फिर 2 से स्टार्ट होएगा स्टेट्स के केस में। हाँ क्यों नहीं, प्रेसिडेंट के केस में ना सेंटर के केस में, हाँ मतलब प्रेसिडेंट हो। हाँ जी, नाउ माय क्वेश्चन टू रिधि, who issues ordinance under 213, under article 213? Yes, Riddhi? Sir, I don't know. Okay. Kanika? Kanika? Monica? Sir, governor. Exactly, गवर्नर, ठीक है। हाँ, तो जैसे प्रेसिडेंट आपके सेंटर में है, वैसे ही गवर्नर आपका हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर हर कोई बनता भी नहीं ना, उसको बनाते हैं जिसको साइड करना होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आपका क्वेश्चन था। सो ये काफी न्यूज में रहता है, खासकर इलेक्शन माहौल में एंजॉय करता है ये भी, ठीक। सो चलो जी, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ओनली डील्स इन मैटर ऑफ फाइनेंस, ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ED was formed in 1957, ठीक है, आजादी के पहले, ठीक है। ED was formed in 1957, far away, far before आजादी। So ED enforces the following laws: Foreign Exchange Management Act 1999, पहले होता था ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, बाद में इसको कर दिया फेमा, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज में देखते हो ना, सुनते हो ना आप लोग कि धोखाधड़ी कर दी, किसी के घर डॉलर्स मिलते हैं, वो बताते नहीं कि हमारे पास डॉलर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सॉरी, ठीक है, PMLA। अब इसकी एक और स्टोरी है कि PMLA में क्या होता है कि सपोज जैसे क्या होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर आप देखोगे, ठीक है, या आप ड्रग्स केस में देखोगे जो अभी चल रहा है महाराष्ट्र में, तो उसमें NCB तो कर ही रही है, बट जहां पे एक एजेंसी होती है वहां ED भी पहुंच जाती है, क्योंकि हमेशा एंगल पैसों का रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैटर्स इन दोनों के अंदर आते हैं, मोस्ट ऑफ द मैटर्स, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि ED पीछे पीछे चलती है इनके साथ, CBI और खास करके NCB या जिसके साथ भी, ठीक है, या चुनाव से पहले कोई इस तरीके की, ठीक है। तो ये चलता रहता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस आपके फॉल करते हैं इसी में, आइदर PMLA में, और मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ केसेस अगर दोनों में बात करें तो इसमें ही आते हैं, हाँ, ठीक है। बट क्या होता है कि सपोज CBI कोई केस देख रही है, ठीक है, क्राइम रिलेटेड या करप्शन रिलेटेड, तो जो करप्शन करेगा और बड़ी पद पे करेगा वो तो यहाँ भी कर सकता है ना, जैसे अभी पंडोरा बॉक्स चल रहा है। सो आपने पैसा इतना है, आपने कोई मॉरिशस में कंपनी खोल दी, आप सेक्रेटरी हो, ठीक है,
ने खोल दी कंपनी। तो अब सीबीआई तो आपके अगेंस्ट करप्शन के केसेस देख रहा है, अब मुद्दा आ गया आप पीएमएलए का। तो फिर सीबीआई क्या करता है, सीबीआई ट्रांसफर्स दिस केस टू ईडी। समझ गए कि ईडी का रोल कैसे आता है इसमें? अरे जहाँ पैसा वहाँ ईडी। हाँ, सबसे बढ़िया काम है ना। चंदा कोचर केस। यस दीदी, सर चंदा कोचर केस। हाँ बिल्कुल सही बात है, चंदा कोचर या जो भी आई मीन जहां भी पैसा आ गया वहां पे, बिकॉज करते ही ये लोग यही है ना, पैसा बहुत है आपके पास, अगर आपके पास भी होता है तो आप भी कोई कंपनी खोल दोगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो कोई भी जिसके पास पैसा है वो ऐसे ही करता है। अब इंडिया में कितना ही रखेगा, लिमिट है ना एक चीज की। सो वैसे भी इकोनॉमिक्स वालों को पता है कि पैसा पैसे को कमाने में लगाओ यार, घर में रख के उसको कचरा क्यों बनाना है। बैंक में भी आजकल 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग्स पे, क्या करना है उसका, मार्केट में लगाओ, ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। आईपीओ खरीदो, आईपीओ, ठीक है। सो ईडी का रोल यहाँ पे आ गया, समझ आई बात? क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल, दिस डीए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीए, ठीक है। देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड दिस एक्सपेंडिचर। सो एक ही फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो 4-5 टॉप सेक्रेटरीज होते हैं, हर डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है। और हर कोई आईएएस ना, मोस्टली आईएएस। अच्छा मोस्टली इसका आईआरएस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है। वैसे मोस्टली आईएएस होते हैं, सेक्रेटरी मोस्टली आईएएस होते हैं, ठीक है। हाँ वो मेहनत से निकले ना, टॉप कुछ में आओगे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट। हाँ ये तो है ही है, ठीक। बस खत्म हो गया, मजा नहीं है यार। इसका वेब दिखा गया। ये तो इतना ही है, इसका क्या करना हमने, ये कोई पूछता भी नहीं, ये तो रोज ही घूमती रहती है, तो हमने क्या करना है इसका। बड़ा जल्दी खत्म हो गया यार। नहीं सर, हमने शायद थोड़ा फास्ट, स्पीड हमारी फास्ट रही। इसी टॉपिक इंटरेस्टिंग था ना। चलो, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड मे बी। हाँ, एनी क्वेश्चन सो फार, एनीबॉडी, एनी डाउट? कोई क्वेश्चन हो आजकल सीबीआई ईडी के देख के आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन गो अहेड। यस, एनीवन? सीबीआई में जो क्या जो पौधे होते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं, पोस्ट, तो कौन से क्या करते हैं, कैसे डिफाइन होती है, कैसे डिफाइंड होती है? जैसे बड़ा कौन छोटा बड़ा बड़ा और छोटा। हाँ अच्छा, पोस्ट होती है ना, जैसे सबसे ऊपर डायरेक्टर होता है, देन यू हैव स्पेशल डायरेक्टर्स, एंट्री लेवल क्या पोस्ट, देन यू हैव जॉइंट डायरेक्टर्स। इसमें एसपी की पोस्ट होती है जो डायरेक्ट एग्जाम्स होती है इसके लिए। जैसे कहते हैं ना कि हम सीबीआई के एग्जाम्स दे रहे हैं, हाँ सीबीआई के जो एग्जाम्स होते हैं, तो पुलिस वाले जाते हैं उसमें। हाँ हाँ, बेसिकली इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर आप बनते हो, एक्चुअली आप एसपी बनते हो, ठीक है। उसमें डी भी है, सी ग्रुप भी है, डी भी है, ठीक है। बट ऑफिसर जो टॉप बॉस है वो सिर्फ आईपीएस ही होता है। तो सीधा यूपीएससी करो, आईपीएस आईपीएस में हो। बस अब ये तो आपको देखना है कि आपको नीचे से जाना है कि ऊपर से आना है। कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया गवर्नमेंट की बैठे हो जाए यस ऑनलाइनर्स, कोई डाउट है या नहीं है? एनीवन? हाँ जी, नहीं है तो बोल दो भाई, नो है सर। तो भी बोल दो। नहीं? अनंत, आर यू देयर? आई मीन थे, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरे को लगा यू आर नॉट हियर। अनंत लेट ज्वाइन किए? यस ओके, जल्दी किया करो भाई, टाइम से। क्वेश्चंस भी पूछने होते हैं मैंने।
ठीक है, चलो, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।